শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা 67 নম্বর তাৎপর্যের अंतिम परिच्छेद अनुच्छेद शुभारंभ करिब। आशा करता हूँ आप सबके पास बुक है। बुक रहना बहुत जरूरी है। बुक से क्या होता है, वो कनेक्शन होता है। पीडीएफ से मत देखिए। सब अपना चैतन्य चरितामृत बुक खरीद लीजिए मंदिर से। 67 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য। মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মতে শঙ্কর সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরাই কেবল বৈদিক সন্ন্যাসী। কখনো কখনো তারা প্রতিবাদ করেন যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারক সন্ন্যাসীরা যেহেতু ব্রাহ্মণ কলোদ্ভূত নন মানে ব্রাহ্মণ কুল মে জন্ম नहीं लिया है, তাই তারা যথার্থ সন্ন্যাসী নন। কেননা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম না হলে মায়াবাদীরা তাকে সন্ন্যাস দেন না। तो जितना भी मायावादी सन्यासी है सब ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। দুর্ভাগ্যবশত তারা জানেন না যে এই যুগে সকলেই শূদ্র, কলো শূদ্র সম্ভবা। আমাদের জানতে হবে যে এই যুগে কোনো ব্রাহ্মণ নেই, কেননা যারা ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ হয়েছে বলে নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করেছেন তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী নেই। কিন্তু অব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও যদি তার মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী দেখা যায় তাহলে তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা উচিত। নারদ মুনি ও শ্রীধর স্বামী তা প্রতিপন্ন করে গিয়েছেন। সেই কথা শ্রীমদ্ ভাগবতেও বর্ণিত হয়েছে। নারদ মুনি ও শ্রীধর স্বামী উভয়ই সর্বতভাবে স্বীকার করেছেন যে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই কেবল ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর দ্বারাই ভূষিত হলে যে কোনো কলোদ্ভূত মানুষই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে পারেন। তাই আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে আমরা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী না থাকলে কাউকে সন্ন্যাস দিই না। যদিও এই কথা সত্যি যে ব্রাহ্মণ না হলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না, তা বলে তার অর্থ এই নয় যে ব্রাহ্মণ কলোদ্ভূত অযোগ্য মানুষকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিতে হবে এবং অব্রাহ্মণ কলোদ্ভূত মানুষের ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণাবলী থাকলেও তাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা যাবে না। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনে অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে ভ্রান্ত পথে গমনের পন্থারূপ প্রচলিত বিকৃতি ধর্মমত ও মন গড়া সিদ্ধান্ত বর্জন করে শ্রীমদ্ ভাগবতের নির্দেশ অনুসরণ করছে। हर एक सेंटेंस समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न है? कोई सेंटेंस जो समझ में नहीं आया? अगला श्लोक 68। यस, इंद्रावती माता जी रिपीट करिए। সন্ন্যাসী হইয়া করো নর্তন গায়ন, সন্ন্যাসী হইয়া করো নর্তন গায়ন, ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া করো সংকীর্তন, ভাবুক সব সঙ্গে লইয়া করো কীর্তন। তুমি একজন সন্ন্যাসী, অতএব তুমি মিউট করে দিজে, ভাবুকদের সঙ্গে নৃত্য করে গান করে সংকীর্তন করো কেন? चंदा माता जी वीडियो ऑफ करिए प्लीज। कोई मूविंग वीडियो मत रखिए। हाँ प्रभु, थोड़ा सा कुछ करके फिर ठीक है, वीडियो जब बैठ पाएगा तब करिए, जैसे ऐसे मूविंग वीडियो मत रखिए। तात्पर्य এটি হচ্ছে প্রকাশানন্দ সরস্বতী কর্তৃক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মানে ডিবেট, আহ্বান করছেন আসলে, क्योंकि अभी शुरू होगा डिबेट। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তার অনুভাষ্যে লিখেছেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি হচ্ছেন সমস্ত বেদান্ত দর্শনের আরাধ্য বস্তু,
তিনি অত্যন্ত দয়া পরবশ হয়ে বেদান্ত দর্শন পাঠ করার যোগ্যতা কার রয়েছে সেই ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন। সেই যোগ্যতা ব্যক্ত করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার শিক্ষা অষ্টকে বলেছেন, ত্রিনাদপি সুনিচেন তরুরিব সহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেন কীর্তন্য সদা হরি। এই উক্তিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে বেদান্ত দর্শন শ্রবণ অথবা কীর্তন করার যোগ্যতা লাভ করা যায়। অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে তরুর থেকেও সহিষ্ণু হয়ে, তৃণের থেকেও দীনতর হয়ে, নিজের জন্য কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে এবং অন্য সকলকে সমস্ত সম্মান দান করে বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। ओके, तो वैदिक तत्व अगर हृदयंगम करना है तो ये है फॉर्मूला, ये है सीक्रेट फॉर्मूला। तो कौन व्यक्ति योग्य है ये महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बता कर गए हैं। तो जो व्यक्ति समस्त वेदांत दर्शनेर आराध्य वस्तु जिनसे वेद सब निकलता है, उन्होंने खुद भी बताया गया है कि व्यक्ति का जीव का क्या योग्यता होना चाहिए वेदांत दर्शन को हृदयंगम करने के। किसी का कोई प्रश्न है? अगला श्लोक 69, वेदांत पठन ध्यान सन्यासीर धर्म। वेदांत पठन ध्यान सन्यासीर धर्म। ताछाड़ी करो केनो भावुकेरो कर्म। ताछाड़ी करो केनो भावुकर कर्म। वेदांत पाठ म्यूट कर दीजिए। ओ ध्यान कराई होच्छे सन्यासीर धर्म। तो वेदांत पाठ माने ज्ञानी बनेगा वेदांत पाठ करके, और ध्यान माने ध्यानी बनेगा। समझ में आ रहा है अशोक प्रभु? तो यही है इन लोगों का कर्म। সেই ধর্ম ত্যাগ করে কেন ভাবুকের মতো নৃত্য কীর্তন করছো? নৃত্য কীর্তন क्या है? डिवोटी का काम है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तात्पर्य एको चत्वारिंशति कितना हुआ? श्लोके विश्लेषण 41 বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা নৃত্য কীর্তন করা অনুমোদন করেন না। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মতো প্রকাশানন্দ সরস্বতীও ভুল বুঝেছিলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একজন পথভ্রষ্ট নবীন সন্ন্যাসী। তাই তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন সন্ন্যাসীর কর্তব্য না করে কেন তিনি ভাবুকদের সঙ্গ করেছেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য এই প্রশ্ন पूछा था ना, এটা কি तुम्हें तो नृत्य कीर्तन अब भावुक हो गया, इतना इमोशनल हो गया, सब डांसिंग कीर्तन कर रहे हो, एकदम भावुक हो गए हो, गिर जा रहे हो, अष्ट सात्विक विकार आ रहे तुम में। ये सन्यासी का लक्षण नहीं है। सन्यासी का लक्षण क्या है उन लोग के हिसाब से? बैठ के वेदांत पाठ करो। तो सेम चीज ये भी पूछा। प्रभावे देखिए तुम्हा साक्षात नारायण। प्रभावे देखिए तुम्हा साक्षात नारायण। হীনাচার করো কেন ইথে কি কারণ? হীনাচার করো কেন ইথে কি কারণ? তোমার প্রভাব দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি যেন সাক্ষাৎ नारायण। वो तो भगवान ने खुद अपना लाइट चालू कर दिया ना। याद है ना, कल आया था श्लोक में, भगवान ने अपना ऐश्वर्यता का, उज्ज्वलता का लाइट बटन ऑन कर दिया और सब वो देखकर सब भगवान से आकर्षित हो गया। याद है? तो वही बोल रहा है, তোমার প্রভাব দেখে মনে হচ্ছে যে তুমি যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ, কিন্তু তুমি নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের মতো আচরণ করছো কেন? তার কারণ কি? নিম্ন শ্রেণীর মানুষ মানে তুমি ডান্সিং কীর্তন क्या कर रहे हैं? তাৎপর্য বৈরাগ্য, বেদান্ত অধ্যয়ন, ধ্যান
ও কঠোর নিয়ম নিষ্ঠা পালন করার ফলে মায়াবাদী সन्यासीরা অবশ্যই पुण्य कर्म स्तरे अधिष्ठित। ठीक है, तो ये सब करने से क्या होता है, पुण्य कार्य मिलता है, भक्ति नहीं मिलता है। এই পুণ্যের প্রভাবে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কোনো সাধারণ মানুষ নন। क्योंकि वो भी मायावाद सन्यास, इनको तो लग रहा है कि महाप्रभु मायावाद सन्यासी है क्योंकि मायावाद से लिया है ना सन्यास, लेकिन महाप्रभु के मायावाद सन्यासी है? एकदम नहीं। हो सकता है मायावाद सन्यासी से सन्यास लिया है, लेकिन है तो वैष्णव सन्यासी। এই পুণ্যের প্রভাবে প্রকাশানন্দ সরস্বতী বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কোনো সাধারণ মানুষ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি তাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে মনে করেছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা পরস্পরকে নারায়ণ বলে সম্বোধন করেন, কেননা তারা মনে করেন যে পরবর্তী জীবনে তারা নারায়ণ হয়ে যাবেন বা নারায়ণের সঙ্গে লীন হয়ে যাবেন। হরে কৃষ্ণ, মানে ঈশ্বর সাহায্য হবে। প্রকাশানন্দ সরস্বতী মনে করেছিলেন যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ইতিমধ্যেই নারায়ণ হয়ে গিয়েছেন, অলরেডি हो चुका है, क्योंकि उनका तेज देखा, ब्रह्म तेज देखा, এবং পরবর্তী জীবনের জন্য তার আর প্রতীক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই, অলরেডি हो चुका है মহাপ্রভু। বৈষ্ণব ও মায়াবাদী দর্শনের মধ্যে এটি পার্থক্য হচ্ছে যে মায়াবাদী দার্শনিকেরা মনে করেন যে দেহ ত্যাগের পর তারা নারায়ণের দেহে লীন হয়ে नारायण হয়ে যাবেন। यह उन लोग का क्या बोलते हैं, अद्वैतवाद, कि भगवान से विलीन हो जाएंगे। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শনিকেরা জানেন যে জড়দেহের মৃত্যুর পর তারা এক জড়াতীত চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে নারায়ণের সঙ্গ লাভ করবেন, लेकिन नारायण नहीं हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं वैकुंठा प्लैनेट्स में बहुत भक्त हैं जो भगवान का सेवक है, वैसे बन जाएगा, सेवक ही रहेगा अभी भी, अगर पुण्यता प्राप्त कर लिया तब भी। किसी का कोई प्रश्न है, कोई लाइन समझ में नहीं आ रहा है, एनी क्वेरी? अगला श्लोक 71। प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहारो कारण, प्रभु कहे सुनो श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। महाप्रभु समझ रहे हैं आप लोग ना, अभी और खेला হবে। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती प्रश्न उत्तरे बोलें, हे श्रीपाद, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि की कारण हेनाचार, की कारण क्या, तुम कैसे क्यों भावुक हो रहे हो, तुम्हारा देख के तो लग रहा है तुम साक्षात नारायण हो, तो तुम्हारा इतना नीच निम्न श्रेणी मानुषদের মতো आचरण क्यों, डांसिंग कीर्तन है, ये सब क्यों कर रहे हो? महाप्रभु उत्तर दे रहे हैं, শ্রীপাদ তার কারণ আমি বলছি, দয়া করে আপনি তা শুনুন। আমার গুরুদেব বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি একটি মূর্খ এবং তাই তিনি আমাকে শাসন করেছিলেন। তাৎপর্য, প্রকাশানন্দ সরস্বতী যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন তিনি বেদান্ত পাঠ করেন না এবং ধ্যান করেন না, তখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজেকে একজন মূর্খ বলে উপস্থাপন করেছিলেন, কেননা বর্তমান কলিযুগটি হচ্ছে সমস্ত মূর্খদের যুগ, তাই বেদান্ত দর্শন পাঠ করে ও ধ্যান করে পরমার্থ সাধন হয় না। শাস্ত্রে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হরের নাম হরের নাম এব কেবলম, কলো नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। कौन सा पुराण में है शायद ये? कलह ও প্রবঞ্চনাপূর্ণ এই কলিযুগে, तो कलियुग में क्या है, दो लक्षण क्या है, एक तो कलह माने बहुत कोरलसम, सब झगड़ा, और प्रवंचनापूर्ण का क्या अर्थ हुआ? दिखावे लिखा हुआ प्रभु, हिपोक्रेसी माने दिखावा कुछ और है कुछ, ऐसे। এই কলিযুগে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা, তাছাড়া আর কোনো গতি নেই, অন্য কোনো গতি নেই।
साधारणतः ये 3 बार क्यों बोलता है, इसके लिए भी कारण है। गति नाचते हुए नाचते हुए नाचते हुए, 3 बार नाचते हुए क्यों? कर्मयोग से नहीं हो पाएगा, जोर दे ज्ञान करके योग, बोल। हाँ, ज्ञान योग से नहीं हो पाएगा, ध्यान योग से भी नहीं हो पाएगा। नाचते हुए नाचते हुए नाचते हुए फिर गति अन्यथा मीन्स भक्ति योग से ही हो पाएगा। তাছাড়া আর অন্য কোনো গতি নেই, অন্য কোনো গতি নেই, আর অন্য কোনো গতি নেই। সাধারণত এই কলিযুগের মানুষের এত অধঃপতিত যে তাদের পক্ষে বেদান্ত সূত্র অধ্যয়ন করে পরমার্থ সাধন করা সম্ভব নয়। इतना अधपतित है। अरे वेदांत पाठ करने के लिए तो थोड़ा धार्मिक होना पड़ेगा, थोड़ा तो रिचुअलिस्टिक होना पड़ेगा। वो नहीं है, वो भी नहीं है, तो क्या वेदांत पाठ करेगा, वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं। সুতরাং ঐকান্তিকভাবে নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতে হবে, কেননা এই জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার সেটি হচ্ছে একমাত্র পন্থা। तो आइडियल फॉर कलयुगा इज हरिनाम, बिकॉज वो सूट करता है, क्योंकि कलयुग का लक्षण क्या, कलह। जो झगड़ा झाटी करते हैं वो क्या वेदांत सूत्र पड़ेगा। जो प्रवंचनापूर्ण डुअलिज्म है, मन में कुछ पेट में कुछ और जवान में कुछ, वो कैसे वो वेदांत शास्त्र पाठ करेगा, उसमें तो रहेगा नहीं वो गुण। यस, थैंक यू अद्भुत चरण प्रभु। ये जो श्लोक है ये ब्राह्मण सॉरी ब्रहान ब्रहान बृहन नारदीय पुराण, बृहन ना, हाउ यू प्रोनाउंस दिस, ब्रहान? वो बृहद होगा, बृहद नारदी पुराण। बृहद नारदीय पुराण। अच्छा, हमने बृहद पढ़ा ना कल्याण मास, तो यही बोलती है। बृहन नारदीय पुराण, बृहन है स्टोरी। बृहन बृहन, अच्छा टाइप कर लीजिए। अच्छा, नो प्रॉब्लम, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। बृहन नारदीय पुराण मैं भी लिख लेता हूँ, BRIHN नारदीय पुराण। ओके, अगला श्लोक 72। मूर्ख तुमी तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, ऐसे गुरुदेव ने उनको बोला। তুমি তোমার নাই বেদান্ত অধিকার, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। কৃষ্ণ মন্ত্র জপ সদা এই মন্ত্র সার। तो महाप्रभु गुरुदेव ने महाप्रभु को क्या बोला, তিনি বলেছেন তুমি একটি মূর্খ, বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করার অধিকার তোমার নেই, তুমি কেবল নিরন্তর কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করো, এটাই হচ্ছে সমস্ত वैदिक मंत्रेर सार। ऐसा करके महाप्रभु का गुरुदेव ने महाप्रभु को बोला। ये है क्या, ये हुआ क्या कभी, ये ऐसा हुआ क्या? नहीं, नहीं लेकिन बाबा। प्रकाशानंद सरस्वती को उद्धार करने के लिए ये उपाय महाप्रभु कर रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य बहुत लंबा तात्पर्य है। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী মন্তব্য করেছেন, শ্রী গুরুদেবের মুখ নিঃসৃত বাণী যথাযথভাবে সম্পাদন করলে জীবনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সফল হয়। এইভাবেই গুরুদেবের বাণী গ্রহণ করাকে বলা হয় শ্রৌত বাক্য। বুঝ মে আ सकता है। এবং তা নির্দেশ করে যে শিষ্যকে অবিচলিতভাবে গুরুদেবের আদেশ পালন করতে হয়। এই সম্পর্কে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবের নির্দেশ সর্বান্তকরণে গ্রহণ করা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে বলেছেন, যেহেতু তার গুরুদেব তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কেবলমাত্র কৃষ্ণ নাম জপ করার জন্য, তাই তিনি নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেছিলেন। কৃষ্ণ মন্ত্র जप सदा এই মন্ত্র সার। क्लियर है फर्स्ट पैराग्राफ? एनी क्वेश्चन? तो गुरुदेव ने सिर्फ जप करो, क्योंकि बोला हम मूर्ख हैं, हम सब वेदांत पाठ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम सिर्फ जप करते हैं और कुछ नहीं। यस माता जी, नहीं गलती से हो गया प्रभु जी, नहीं गलती से हुआ। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর উৎস। তাই কোনো মানুষ যখন পূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভাবনাময় হয় তখন বুঝতে হবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার সম্পর্ক পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কৃষ্ণ ভাবনার অভাব হলে জীব আংশিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকে, তাই সে তার স্বরূপে অধিষ্ঠিত থাকে না। क्लियर है?
যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং সমগ্র জগতের গুরু, তবুও তিনি গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে নিরন্তর হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার শিক্ষাদান করার জন্য স্বয়ং শিষ্যত্ব বরণ করেন এবং করে এই আচরণ করে গিয়েছেন। हो सकता है यद्यपि वो जगत गुरु है भगवान महाप्रभु, लेकिन फिर भी गुरुदेव को स्वीकार किया है और गुरुदेव का आज्ञा पालन किया है। যিনি বেদান্ত পাঠের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য। এই যুগে কারোরই বেদান্ত অধ্যয়ন করার যোগ্যতা নেই, তাই সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সার মর্ম ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করাই শ্রেয়। সেই সম্পর্কে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভাগবত গীতায় বলেছেন, বৈদেশ্চ সর্বমহমেব বৈদ্য বেদান্ত কৃদ্বেদ বিদেব চাহম। সমস্ত বেদে আমি কেবল জ্ঞাতব্য, আমি হচ্ছেন বেদান্তের প্রণেতা এবং আমি হচ্ছি বেদ বেত্তা। মূর্খরাই কেবল গুরু সেবা ত্যাগ করে নিজেদের তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করে। এই ধরনের মূর্খদের নিরস্ত করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যথার্থ শিষ্য হওয়ার আদর্শ সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দিয়েছেন। গুরুদেব খুব ভালোভাবে জানেন কিভাবে তার শিষ্যকে কোন বিশেষ সেবায় নিযুক্ত করতে হয়, কিন্তু শিষ্য যদি নিজেকে গুরুর থেকেও বড় পণ্ডিত বলে মনে করে, তার নির্দেশ অমান্য করে স্বাধীন মত অনুযায়ী আচরণ করতে শুরু করে, তাহলে তার পারমার্থিক প্রগতি রুদ্ধ হয়। প্রতিটি শিষ্যেরই কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে কৃষ্ণ তত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ বলে মনে করে কৃষ্ণ ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে সর্বদা গুরুদেবের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত থাকা। श्रील प्रभुपाद कहीं बताता है ना कि आई डोंट नो, इंग्लिश परपोर्ट में मैंने पढ़ा है, ऑलवेज रेडी टू से यस सर, ऐसे कुछ जैसे कुछ सोल्जर्स लोग बोलते हैं ना, ए फायर यस सर, ऐसे करके कुछ ऐसे कुछ शिष्य लोग का ऐसे होना चाहिए, एकदम ऑलवेज रेडी टू गुरुदेव का आज्ञा पालन करने के लिए। শিষ্য, হ্যাঁ সুভাষ বাবু। হনুমানের মতন একবার রেডি স্টেডি গো। শিষ্যের কর্তব্য গুরুদেবের সামনে নিজেকে মহামূর্খ বলে মনে করা। তাই কখনো কখনো লোক দেখানো পারমার্থীবাদের এমন কারোর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে দেখা যায় না যে এমনকি সে শিষ্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা সেই সমস্ত তথাকথিত শিষ্যরা সেই সমস্ত তথাকথিত গুরুদেবকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ অধীনে রাখতে চায়। जैसे ऐसे ये तो बहुत अभी आजकल का फैशन है कि हर एक बड़ा बड़ा सेठ जी लोग गुरुदेव रखता है और अपने अंडर में रखना चाहता है। गुरुदेव आज ये करेंगे, गुरुदेव हाँ ओके, क्योंकि गुरुदेव को मंथली सैलरी मिलेगा, गुरुदेव को अपना घर में रखेगा तो गुरुदेव का अन्न खाएगा। अभी जिसका आप अन्न खाएगा उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आप तो शिष्य को भी डांट पाओगे क्या? तिरस्कार कर पाओगे? नहीं, फिर तो हमको भगा देगा, हमारा एकोमोडेशन एंड फूडिंग लॉजिंग सब चला जाएगा। हाँ, इस प्रसंग में वो कृपाचार्य और चाणक्य पंडित कहता है। ये कृपाचार्य यद्यपि कुलगुरु था, लेकिन कहाँ रहता था? राजमहल में रहता था। पांडव के, ये इनका दुर्योधन के राजभवन में। अभी आप उनके राज्य में रह रहे हैं, तभी दुर्योधन जैसा करेगा वैसे आपको भी साथ देना पड़ेगा। जब युद्ध छेड़ा तो कृपाचार्य किनके पक्ष में युद्ध किया? भगवान के पक्ष में युद्ध किया, भगवान के विपक्ष में युद्ध किया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में ये जो चाणक्य पंडित था, ये एकदम कठोर, ये भी सलाहकार था। कृपाचार्य युद्ध कहाँ किए थे? द्रोणाचार्य भले बोल सकते हैं, कृपाचार्य तो युद्ध नहीं किए थे। किया था तो नहीं किए थे प्रभु, साथ में थे लेकिन युद्ध नहीं किए थे वो। कृपाचार्य युद्ध नहीं किया था? नहीं, हमको तो इतना दूर जानकारी है कि प्रभु जी किए थे कृपाचार्य ने भी वही दुर्योधन के पक्ष में युद्ध किए हैं कृपाचार्य, वो भी युद्ध किए। कृपाचार्य भी किए थे, द्रोणाचार्य किए थे पहले। अच्छा ठीक।
प्रभु जी उसमें है ना भगवत गीता में वो दृष्ट द्युम्न वाला द्रुपद का वाला कथा। एनीवेज, मेरे को जितना दूर ख्याल है कि कृपाचार्य ने युद्ध किया था, लेकिन चाणक्य पंडित को देखिए, वो महाराज चंद्रगुप्त मौर्य का वो सलाहकार था, ब्राह्मण था, एकदम मिनिस्टर था, चीफ एडवाइजर भी था, लेकिन वो कुटिया में जंगल में रहता था कि उसके लिए परफेक्ट सलाह दे सकता है राजा को। राजा का अन्न खाएगा तो राजा का जैसे ही उत्तर देना पड़ेगा, राजा जो चाहेगा वही करना पड़ेगा। एकदम सेम चीज श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य बता रहे हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। তাই কখনো কখনো লোক দেখানো পারমার্থীবাদের এমন কারোর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে দেখা যায় যে এমনকি সে শিষ্য হওয়ারও যোগ্য নয়, কেননা সেই সমস্ত তথাকথিত শিষ্যরা সেই সমস্ত তথাকথিত গুরুদেবকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন রাখতে চায়। तो ऑल्दो डिसाइपल इज नॉट क्वालिफाइड टू बिकम, दीक्षा देने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन अपना खाना पीना नहीं तो बंद हो जाएगा, उसलिए दीक्षा दे देता है। পারমার্থিক উপলব্ধির পথে এই ধরনের আচরণ সম্পূর্ণ অর্থহীন। কৃষ্ণ ভাবনামৃত সম্বন্ধে যে মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ, সে কখনো বেদান্ত দর্শন উপলব্ধি করতে পারে না। কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়া লোক দেখানো বেদান্ত অধ্যয়ন জীবকে ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার দ্বারা কবলীভূত করার একটি আয়োজন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীল মায়া শক্তির প্রমত্ততার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে পড়ে, ততক্ষণ সে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় থেকে বিমুখ থাকে। বেদান্ত দর্শনের প্রকৃত অনুগামী হচ্ছে ভগবত ভক্ত, ভগবত তত্ত্ব বৈষ্ণব, যিনি জানেন যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন মহৎ থেকে মহত্তম এবং সমগ্র জগতের পালনকর্তা। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সীমিতের সেবা প্রবৃত্তি অতিক্রম করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসীমের কাছে पहुंचते पारे ना। उसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुदेव के अपने शिष्यों को भगवान की सेवा में लगाए। कि देखिए सेवा का कितना इंपॉर्टेंस लिखा है, शास्त्र के अध्ययन, भगवान का सेवा दोनों सिमिल्टेनियसली होना चाहिए। প্রকৃতপক্ষে এই অসীমের জ্ঞানী হচ্ছেন ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম জ্ঞান। यस माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सीमित जो है वो गुरु महाराज के लिए बोला गया है, जब तक उनका যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের সীমিতের সেবা প্রবৃত্তির অতিক্রম করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসীমের কাছে पहुंचते पारे ना। सीमितेर सेवा प्रवृत्ति मैंने हम लोग के लिए बोला गया है, जीव के लिए बोला गया है। हम लोग का सीमित सेवा का प्रवृत्ति रहता है, और वो सीमित सेवा बिकॉज वी वांट टू जस्ट सर्व थोड़ा थोड़ा जितना है, तो वो किसके लिए सर्विस? फॉर असीम भगवान का। उनका तो सेवा का कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए फिर से যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সীমিতের সেবা প্রবৃত্তি অতিক্রম করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে অসীমের কাছে पहुंचते पारे ना। तो हम लोग का जो सीमित सेवा प्रवृत्ति है, जो हम लोग अपने सो कॉल्ड जड़ जगत में परिवार वर्ग इस सब के लिए प्रति कर रहे हैं, उसको अतिक्रम करके जब असीम भगवान का सेवा में जब तक ना हम लोग नियुक्त हो पा रहा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। यस, अच्युत कर्मणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ तो पढ़ने के बाद ये समझ में हमारे आ रहा है कि सीमित तो सेवा प्रकृति मतलब हो गया जो देवता लोगों के प्रति जो हम लोग सेवा परायण होते हैं या ये होते हैं, देवता लोग के प्रति, परिवार के प्रति जो थोड़ा थोड़ा कुछ कर्तव्य कर पा तो रहे हैं, मेरे को ये चाहिए बोल के हम कुछ देर के लिए सेवा करते हैं, फिर अपने वाली करते हैं। और भगवान की सेवा में जाने के लिए तो असीमित होना पड़ेगा, यानी निरंतर। भगवान को बताया गया असीमेर काछे, असीम को भगवान को बताया गया है, भगवान असीम। भगवान के लिए फिर असीमित सेवा भी करनी पड़ेगी। असीमित माने निरंतर सेवा करना पड़ेगा भगवान के। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। প্রকৃতপক্ষে এই অসীমের জ্ঞানই হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম জ্ঞান। যে সমস্ত মানুষ সকাম কর্মের প্রতি ও মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানের প্রতি আসক্ত থাকে,
তারা পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত আনন্দময় ভগবানের শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। जो सकाम काम और मनोधर्म प्रसूत ज्ञान, যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন পবিত্র নামের আশ্রয় গ্রহণ করছেন তাকে আর বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করতে হয় না, কেননা তিনি ইতিমধ্যে এই সমস্ত অধ্যয়ন সমাপ্ত করেছেন। इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है उसका समस्त वेदांत ज्ञान सब कुछ पाठ सब कुछ हो चुका है, उसका सब कुछ हो गया। अभी से भगवत गीता भागवतम ये सब अध्ययन कर, that's it। 4 वेद अध्ययन वो सब का कोई दरकार नहीं है। যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করতে অক্ষম হয়ে মনে করে শ্রীকৃষ্ণের नाम श्रीकृष्ण থেকে ভিন্ন। अच्छा, और एक है, ऐसा नहीं कि वेदांत वेद कभी पाठ ही नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने आप को अच्छा डिवोटी एस्टेब्लिश थोड़ा बहुत, अभी उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है, करने के बाद अगर आप वेदांत दर्शन पढ़ना चाहते हैं एक्सेट्रा, वेद अध्ययन करना चाहते हैं, दैट इज ओके, क्योंकि आप भटकेंगे नहीं, आशा करता हूं, क्योंकि ऑलरेडी आपने अपना फाउंडेशन को स्ट्रांग बना चुके हैं। बट नॉट वाइसी वर्सा, वेद पढ़ के फिर इसमें आना वो डिफिकल्ट हो सकता है, वेद में फंस सकते हैं। जब वेदों के बारे में अच्छा से आपको पता चल गया क्या है, फिर वेद अगर आप अध्ययन करें 4 वेद तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत कर्मकांड है, लेकिन आपको पता चलेगा, ओ देखो ये वो 93% जो क्लास में बताया जा रहा था, ये देखो ये एकदम शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের, यस बोलिए चंदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भागवतम जब वेद की व्याख्या है तो वेद पढ़ने का तो कोई दरकार ही नहीं है हम लोगों को। दरकार नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ना चाहता है, डिटेल में जानना चाहता है वेद में क्या, वेद भी तो भगवान से आया है, दरकार नहीं है, लेकिन अगर कोई करना चाहता है, somebody has time, और कोई इंटेंस स्टडी जो स्कॉलर्स होता है वो करता है, नो प्रॉब्लम, कर सकता है, लेकिन इस रास्ते से जाना सेफ है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा से मालूम है कौन क्या है। अभी ब्लैक एंड व्हाइट, अभी वेद अध्ययन करेंगे तो आपको 100% पता चले ये कर्मकांड है, ये शुद्ध भक्ति है, अच्छा से पता चल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हो गया आपका फाउंडेशन। जी जी यस बंकिम प्रभु। হরে কৃষ্ণ, হরিবল, দণ্ডবত প্রণাম। ভাগবত হচ্ছে আগে ভক্তের কথা, পরবর্তীকালে ভগবানের কথা। আর বেদে হচ্ছে ভাগবতে ভক্ত, ভগবান, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লিগ্যাল, সিঙ্গিং এন্ড মেডিসিন, অল দ্য থিংস কামিং ফ্রম বেদ। হরে কৃষ্ণ প্রভু। যে মানুষ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করতে অক্ষম হয়ে মনে করে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রীকৃষ্ণ থেকে ভিন্ন এবং বেদান্ত অধ্যয়নের মাধ্যমে তাকে জানবার চেষ্টা করে, সে হচ্ছে একটি মহামূর্খ। সেই সত্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ব্যক্তিগত আচরণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, এবং যে সমস্ত মনোধর্মী জ্ঞানী বেদান্ত অধ্যয়নকে তাদের পেশাগত বৃত্তি বলে গ্রহণ করেছে, তাদেরও জ্ঞান মায়ার দ্বারা অপহৃত হয়েছে। মায়া অপহৃত জ্ঞান, কিন্তু যিনি নিরন্তর ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করেন তিনি ইতিমধ্যেই অজ্ঞানের পারাবার অতিক্রম করেছেন। এভাবেই এমনকি নিজ কুলোদ্ভূত কোনো মানুষের যদি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনে মগ্ন হন, তিনিও বেদান্ত अध्ययन स्तौर अतिक्रम करेছেন বলে বুঝতে হবে। इसीलिए उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र ग्रहण किया है, ये समझना पड़ेगा। कोई अगर नीच कुलोद्भीत हो, एकदम चंडाल भी अगर ग्रहण किया है हरे कृष्ण महामंत्र, ये समझना पड़ेगा वो चंडाल का ऑलरेडी वेद अध्ययन हो चुका है। এই সম্পর্কে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে, अहोबत सपचुतो गरीयान यज्जगहग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कितना सुंदर श्लोक है। अहोबत सपचत गरियान, स्वपच भी वो भी शुद्ध भक्त में हो गया कन्वर्ट। क्यों? जो भी जात जीभाग्रे, जिसका जीव का अग्रभाग में वर्तते नाम तुभ्यन, हे प्रभु आपका जो नाम ग्रहण किया है, वो व्यक्ति स्वपच होने, स्वपच माने जो कुत्ते का मांस को हजम करा सकता है, चंडाल स्वपच, वो भी हजम माने वो चंडाल भी कन्वर्ट हो गया ब्राह्मणों में, वैष्णवों में, जो भगवान आपका दिव्य नाम मुंह का अग्रभाग में, जीव का अग्रभाग में वो ग्रहण कर रहा है।
ते पुस्तपस्ते जुहुबु शन्नु राज्य ब्रह्मनुचूर्णाम गृह्णन्ति जेते। শপথ, কুকুর ভোজি চণ্ডাল গুণোদ্ভূত মানুষও যদি শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম কীর্তন করেন, তাহলে বুঝতে হবে যে তার পূর্বজন্মে তিনি সব রকম তপশ্চর্য ও কৃচ্ছ সাধন এবং সব রকম যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছেন। আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, ঋগ্গে দোহত যজুর্বেদ সামবেদঃপি থবর্ণ অধিষ্ঠাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষর দয়ম। যে মানুষ হ এবং রি এই দুইটি অক্ষর কীর্তন করেন, তিনি ইতিমধ্যেই সাম, ঋগ, যজু অথর্ব এই চারটি বেদ অধ্যয়ন করেছেন। অলরেডি हो चुका है जो हरि नाम हरि बोल। এই শ্লোকগুলির অজুহাতে একদল সহজিয়া সবকিছু অত্যন্ত সস্তা ভাবে না। इसका फायदा उठाता है एक दल सहजिया। क्या करता है? তারা নিজেদের অতি উন্নত বৈষ্ণব বলে মনে করে, অথচ বেদান্ত সূত্র অথবা বেদান্ত দর্শন স্পর্শ পর্যন্ত করে না। প্রকৃত বৈষ্ণব কিন্তু বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। হরে কৃষ্ণ, দেখি এই मैं बात कर रहा हूं। কিন্তু বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করার পর কেউ যদি ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করার পন্থা গ্রহণ না করেন, তাহলে তিনি মায়াবাদীর থেকে কোনো অংশেই শ্রেয় নন। तो वैष्णव तो शास्त्र अध्ययन करता है, इंद्रावती माता जी, हाँ, वो शास्त्र का सार अध्ययन करता है, लेकिन साथ ही साथ भगवान का पवित्र नाम भी जाप करता है। करेक्ट? नहीं तो एक बात बताइए, अगर कोई कभी शास्त्र अध्ययन ही नहीं किया, कुछ क्लास भी नहीं किया, अगर कुछ शास्त्र मालूम नहीं है, कितना देर हरिनाम वो जप कर पाएगा? कितना दिन? जैसे हम देखते हैं कोई माता जी बोलते हैं, प्रभु मैं तो अपना प्रभु को डेली 2 माला जप कराता हूँ, डेली। ठीक है, आप कराते हैं, आपका जबरदस्ती आपसे डर के होते कर लेगा 2 माला जप ये डेली चाप दे रहा है। लेकिन एक बात बताइए, वो उनसे प्रभु से पूछिए, प्रभु आपको अच्छा लग रहा है क्या डेली जप कर रहा है? बोला एकदम अच्छा नहीं लग रहा, तुम बोलते हो इसीलिए करते हैं। क्योंकि व्यक्ति को कुछ बेसिक बैकग्राउंड तो जानना चाहिए कि जिनका नाम जाप करे वो कौन है, क्यों नाम जाप करने से क्या फायदा है, क्यों नाम जाप करना चाहिए, ये सब थोड़ा थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए ना। तब तो उनको नाम के प्रति श्रद्धा होगा, तब तो अच्छा से जप करेगा ना। ठीक ना? नहीं तो ठीक है, आप बोल रहे हैं बार बार वो कर रहे हैं इसीलिए। तो थोड़ा तो शास्त्र थोड़ा तो जानना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे अभी आप बोले ना कि जो ये महामंत्र जप करते हैं वो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ लिए हैं, सब कुछ कर चुके हैं, वेदों का अध्ययन कर लिए हैं। तो जब वो कर लिए हैं तो इस जन्म में अगर वो वेद का अध्ययन नहीं कर रहे हैं तो वो स्वीकृति तो उनको मिलना चाहिए ना कि नहीं, यू हैव टू बी ग्लोरियस ऑल द टाइम। फिर से मैं बोला, हम समझ गए आपका प्रश्न। यू हैव टू बी ग्लोरियस ऑल द टाइम। अगर कोई अभी क्लास नहीं कर रहा है और मैं उसको क्लास के लिए बुलाऊं कि प्रभु माता जी क्या हुआ, आपने दिन क्लास नहीं कराई? प्रभु अभी मैं बहुत फंसा हूं, लेकिन आपको तो मालूम है ना, मैं 5 साल लगातार आपका क्लास किया। ऐसा नहीं है। आप ग्लोरियस थे ठीक है, यू हैव टू बी ग्लोरियस थ्रू आउट। आप ऐसा नहीं कि हम देखिए प्रभु आपको मालूम है ना, मैं 5 साल लगातार नाम जप करता हूँ, करते थे ठीक है, आपको हमेशा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पिछले साल में तो ऑलरेडी कर चुका हूँ, पिछले जन्म में ऑलरेडी कर चुका हूँ। देखिए मैं हरे कृष्णा नाम जप कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरा ऑलरेडी अध्ययन हो चुका है, तो इसीलिए मैं भी कुछ नहीं करूंगा। नो, ऐसा नहीं है। विश्वरूप प्रभु का बहुत फेमस लेक्चर है इसमें। यू हैव टू बी ग्लोरियस ऑल द टाइम। ऐसा नहीं कि हो गया अभी हम थे नहीं, यू हैव टू हमेशा भक्ति मार्ग में रहना पड़ेगा। इसीलिए सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सो प्रशुद्धति। ये श्लोक बहुत जानना जरूरी है भक्तों के लिए। देयर शुड बी नेवर कंप्लेसेंसी इन डिवोशनल सर्विस। कंप्लेसेंसी का अर्थ क्या है? बहुत हो गया, अब थोड़ा मैं रिलैक्स करूंगा। नो ना, उसीलिए लिखा है सबे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरदुक्षजे। अदुक्षजे भगवान का भक्ति करना ही सबसे सर्वोच्च है। जो भक्ति अहेतुकी है,
बिना इन्हीं हेतु, और अप्रतिहता। अप्रतिहता का मीनिंग क्या मालूम है? कंटिन्यूअस। तो आप बोल नहीं सकते हैं कि देखिए चातुर्मास में मैंने सुबह उठ गया, ठीक है, अभी हम लोग सारा दिन जप करेंगे आराम से। नो, अहेतु की अप्रतिहता। मैं उठ नहीं पा रहा हूं वो अलग बात है, मैं आलसी हो जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भजन कीर्तन तीव्र सिर्फ 4 मास ही होगा, बाकी 8 मास इंद्र तृप्ति होगा और भजन भी थोड़ा थोड़ा होले होले धीरे धीरे होगा। नो, नारद मुनि जब भगवान से प्रार्थना किया था, वो आया था, हम लोग पढ़ा था अभी तक, कुछ हमको याद नहीं, वो शायद वो गोपाल चंपू में या कुछ बृहद भागवतामृतम में पढ़ा था। नारद मुनि ने रिक्वेस्ट करते, हे प्रभु, नारद मुनि या प्रहलाद महाराज याद नहीं, वरदान जब मांगा था देने के लिए, भगवान बोले ऐसा वरदान दीजिए कि आपका भक्ति करके कोई कभी तृप्त ना हो, कोई कभी तृप्त ना हो आपका भक्ति करके। क्यों? इट इज अनएंडिंग। जितना भजन कीर्तन करेगा उतना तृप्त रहेगा व्यक्ति, उतना तृप्त होता जाएगा। बोले अरे भाई और प्यास लग रहा है, और चाहिए और चाहिए, और ये दिल मांगे मोर, ऐसा बना दीजिए आपका भगवत भक्ति। तो ऐसा हमें हम लोग का भी मन भावना होना चाहिए। ऐसा नहीं मेरा तो हो गया वेदाध्ययन, देखो मैं जब कर रहा हूँ, मैं सब नदी में स्नान कर चुका हूँ, अभी तो और तीर्थ भ्रमण करने का कोई दरकार ही नहीं है, मैं सब वैष्णवों का संगत कर चुका हूँ, अभी घर में बैठे रहूंगा। ऐसा नहीं है। ओके, यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो कहने का मतलब ये भी हो गया कि हम जिस पूजा या जप को करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो मुझे ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा काम हो गया या मैंने उस चीज को पा लिया, सेवा कर दिया, काम खत्म हो गया। और अभी मेरा सवाल है, तो मेरा अभी संध्या आरती मेरा बहुत दिन से मिस हो रहा है, बीच में हम नहीं कर पा रहे कुछ कारण के लिए, और बीच में जब समय मिल भी रहा है तो भूल ही गया, अभ्यास भी छोड़ गया, हो रहा है ऐसे प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहाना दे सकता हूं कि मेरा तो कंटिन्यूअस 10 साल 15 साल हुआ तो हुआ, वो तेल लेने गया। हमेशा होना चाहिए, हाँ हमेशा होना चाहिए। गर्वित नहीं कर सकते कि मेरा तो हुआ, मैं तो परिक्रमा में 1 साल किया बस, ओ हो गया, मैं एकदम पूरा दुनिया को उद्धार कर दिया जाकर, ऐसा नहीं है। इसीलिए ये श्लोक में आता है अहेतु की अप्रतिहता। डिवोशनल सर्विस शुड बी कंटिन्यूअस। अगर हम लोग कहीं लड़खड़ा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसका बहाना नहीं बोल सकते कि हम एक समय तो प्योर था, अभी इम्प्योर हो चुका तो क्या नहीं। अगर इम्प्योर है तो उठिए, अगर इम्प्योर है, कहीं गिर गया तो उठिए, यही तो उत्तर है, और क्या है। अगर कहीं हम लोग का लड़खड़ा रहे हैं, हम लोग कहीं हम लोग का कमी है, तो इसका उपाय क्या है? और गिरते रहे? नहीं, अपने आप को उठाना पड़ेगा। हमको कुछ दिन आगे एक प्रसंग में एक भक्त ने बोला था कि प्रभु अभी देखिए, अभी हमको ये सब ठीक से आप लोग का संगत नहीं कर पा रहा, आपको तो मालूम है मेरा परिस्थिति क्या है, अभी संगत वंगत नहीं कर पा रहा, लेकिन आपको तो मालूम है मैं इतना साल कैसे। संगत हमेशा था, हमेशा रहेगा, हमेशा दरकार है, वो व्यक्ति को जानना पड़ेगा। डिवोटी एसोसिएशन इज सो इंपॉर्टेंट। वो ऐसा आप बोल नहीं सकता कि गर्व नहीं कर सकता कि एक समय सब कुछ चल रहा था, अभी देखिए ये प्रॉब्लम हो गया तुम्हें। संगत, यू हैव टू क्रेव फॉर संगति। वो प्रॉब्लम, संगति आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। ये समझना पड़ेगा, पहले वो अनुभूति होना पड़ेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डिवोशनल सर्विस, भक्ति, भक्तों का संग, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। या तो व्यक्ति मार खा के समझेगा, माया का लात खा के समझेगा, जैसे श्रील प्रभुपाद भजन में बताते हैं, खे माया लाथी, तখন नहीं तो व्यक्ति जो इंटेलिजेंट है वो आगे से समझ के अपने आप को बचा के रहेगा। 2 चीज है, 2 ही तरीका है, या तो दूसरे का गलती से सीखिए, या तो जो लॉन्ग वे अपना गलती से ही सीखिए। कौन सा ज्यादा इजी है, कौन से ज्यादा इंटेलिजेंस है? दूसरे का अपनी गलती से सीखना। सारा भागवतम यही बताते हैं कि दूसरे का गलती, दूसरे ने किसी कैसे लड़खड़ा है और कैसे पिटाई हुआ, ये सब भागवतम में कितना कितना उदाहरण आता है, शास्त्र में तो कितना उदाहरण आता है। तो व्यक्ति शास्त्र क्यों पढ़ता है? क्योंकि बच के रहने के लिए ना, कि वो देखो इसका ऐसे हुआ था, इससे अच्छा भजन कीर्तन करो। यस, बंकिम प्रभु। हरे कृष्णा প্রভুজি, আপনি যেটা এখন যেটা বলছি সেটা আগে যেটা বলতে সেটা নয়, এখন যেটা বলছি আপনি যেটা বললেন যে শিবাসও লাভ খেয়েছিল। শিবাসও আগে তো ভক্তি ছিল না, ভক্ত ছিল না। পরবর্তীকালে উনি যখন স্বপ্ন দেখলেন যে নেক্সট ডে উনি মারা যাবেন, তখন তার ওনার মানে ইয়ে ঘুরলো, উনি ছুটে গিয়ে গঙ্গায় গেলেন, তারপরে ভাগবত শুনলেন, তারপরে ভক্ত বাঁধলেন। তার আগে উনি ভক্ত ছিলেন না, ওনাকে চেতাবনী দেওয়া হয়েছিল আগামীকাল তোমার মৃত্যু হবে। শিবাস তারপরে তো ভক্ত বানলো, তার আগে ভক্ত ছিল না।
আর যেটা প্রথম থেকে বলা উচিত বলবো বলে আমি হাত তুলেছিলাম, সেটা হচ্ছে যে আজকে কলিযুগে ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রপাঠ করে না। শুধু করে না এই কারণে, এটা নিজেরা করে না, এটা যখন অষ্টবক্র মুনি মায়ের পেটে ছিলেন, ওনার বাবাকে বলে গেছিলেন, বাবাকে বলে গেছিলেন যে যারা মানে যারা পুরো 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 কাহিনীটা শোনাবেন, ঠিক আছে? আর ওর থেকে যদি কোনো রিলেটেড কিছু বেরোয় সেগুলো শোনাবেন, বলুন শুনি আমরা। আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। ওকে, সবাই শুনবো আমরা, যতগুলো আচ্ছা, পেটে ওকে। যতগুলো লীলা জানেন সবগুলো শুনে ফেলুন ক্লাসে। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। बोलो रोहिणी कृपा प्रदान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जिस तरह से नित्य क्रिया हम लोगों के लिए आवश्यक है, नित्य भोजन आवश्यक है, उसी तरह से नित्य भक्ति भी आवश्यक है। अगर भक्तों से दूर हुए या नित्य भक्ति छोड़ दिए तो हम माया हमें दबा देगी और हम लड़खड़ा के फिर से उल्टा माया दबाने से पहले सबसे पहले यही छोड़ेगा लोग। कुछ भी प्रॉब्लम अगर घर में मृत्यु हुआ, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, टाका नहीं आ रहा है, इनकम नहीं है, खाने पीने का नहीं हो पा रहा है, सबसे पहले लोग क्लास छोड़ेगा। जब वो जो सुबह वो सब छोड़ आराम से करेंगे, दुकान में बैठते बैठते या गाड़ी में चलते चलते ये सब करेंगे। अभी दीक्षा होके करना तो पड़ेगा ही, फंस गया ये राजकुमार कृष्णदास ने फंसा के रखा है ये सब। हाँ, ऐसे सब आएगा, क्यों हमने लिया, क्यों 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 नहीं, क्या अच्छी क्यों दीक्षा लिया, अभी गुरु को शपथ दे दिया, ची ये सब नहीं फंसना चाहिए था, आजाद रहना चाहिए था। आजाद रहना से क्या होता है, ये सब फंसते नहीं, आराम से अपना हिसाब से करता। अभी ची क्या गलती किया, मैंने क्या गलती किया, अपने आप को गंडी में ला लिया। गंडी समझते हैं, अपने आप को बैरिकेड में ला लिया, अभी फंस गया। इससे अच्छा अपना मन गरा काम करता, अपना जैसे हिसाब से वैसे चलता। अभी बाइंडिंग में आ गया, लोग तो बाइंडिंग में नहीं रहना चाहते हैं। लोग सोचा है कि अपने हिसाब से चलेंगे, अभी कोई आराम से, अभी फंस गया, अभी बाहर खाना वाले नहीं पड़ेंगे, ब्राह्मण दीक्षा ले लिया, ये ले लिया, अभी और फंस गया। अभी क्यों क्या किया मैंने, ये सब बकवास सुनकर। इससे अच्छा स्वतंत्र रहता। ये तो प्लानिंग था, ये ऐसे करके भक्ति शास्त्री करके फिर भक्ति वैभव में घुसाएंगे, ये सब प्लानिंग करके हमने चला। ये तो मेरा प्लानिंग था, मैं तो खुल्लम क्लास में हमेशा बोलते रहता हूँ ये सब प्लानिंग है, ऐसे 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 करके लोगों को। अभी आपको लगता है कि ये ट्रैप है, अगर आप लोग को लगता है कि ये ट्रैप है तो लगे, ऐसे तो मैं बंदूक दिखा के नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो स्टैंडर्ड मैनुअल, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी कर रहा हूँ। अगर पीपल लग सकते दिस इज अ ट्रैप, हम ट्रैप में नहीं फंसेंगे। सो व्हाट कैन डू। यस, महामुकुटमणि माता जी, मेरे तो ये अभी भक्ति शास्त्री खत्म हुआ, मैंने महाराज प्रभु से बात किया, अभी मार्च अप्रैल में महाराज प्रभु भक्ति वैभव शुरू कर देगा, कृपा है उनका, राजी हो गया। हम भी सोचा कि जो टीचर से पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं से आगे पढ़े, आगे प्रभु जी। हाँ बोलिए बात। जो आप बता रहे हैं ना प्रभु जी, ये सब मुझको लोग कहते हैं क्या मिला है आपको? हमको तो बहुत कुछ मिला है, जो था का वो भी चला गया, हम कहें कुछ नहीं गया, जो लिखा था सो गया मेरे तकदीर में। तो आप एकदम सच बात बता रहे हैं प्रभु जी। हरे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी ठीक से इसको पकड़ के रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत लड़खड़ाता हूँ, बस आशीर्वाद दीजिए कि आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ठीक से पकड़ के रख पाऊंगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल नहीं, मैं क्या इसमें हरि बोल क्या है, इसमें तो बने शर्म की बात है कि मैं भी बहुत लड़खड़ाता हूँ। आपके संगत में हम लोग का भी तो यही मालूम है कि यही एक मेडिटेशन है, यही बचा के रख पाएगा। ये भक्तों का संग, ये भगवान का नाम, ये भक्तों का संग में भगवान का लीला अध्ययन श्रवण, ये सभी बचा के रखे। प्रभु जी, भगवान श्री कृष्ण के नाम से जो जुड़ेगा उसका पहले उसका अर्थोन्नति खत्म करेगा। उद्धव को बोला है जो आदमी का अर्थोन्नति ये सब कुछ होता है, अर्थोन्नति खत्म करेगा तो वह भक्त बनेगा, उसको पहले भक्त बनेगा नहीं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपकी संगत में हम लोग का भी उद्धार हो रहा है। उल्टा है, मैं इधर संगत इसीलिए क्लास वर्स किया था कि आप लोग का संगत रहेगा तो मैं जुड़ा रहूंगा। मैं अकेला कभी ये चैतन्य चरितामृत पाठ कर सकता था? कभी नहीं। कभी गोपाल चंपू हम कर सकते थे, बृहद भागवतामृतम अकेला? कभी आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू डू। This was completely out of selfish desire. I'm openly admitting this. पूरा, अगर कोई सोचा कि मैं जीवों को उद्धार करने के लिए निकला, वो गलत है व्यक्ति, गलत है। मैं अपना स्वार्थ के लिए ये करवाया, जो ओपन 12 बजे 6 बजे 3 बजे जो भी कराने का प्रयास कर रहा हूँ, आउट ऑफ फुल सेल्फिश डिजायर। सो डोंट बी एट एनी इल्यूजन जो मैं बहुत महान कोई कुछ प्रचार करने के लिए जीवों को उद्धार करने, एकदम गलत है।
इज ओनली आई एम डूइंग फॉर माई ओन, मैं टिके रहूं ठीक से, उसीलिए कर रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई झूठ नहीं है, अपने आप को टिका के रखने के लिए ही कर रहा हूं, সত্যি কথা। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী বদন ভরিয়া হরি হরি जय